Hello students, how are you? Hope all of you are fit and fine. Today we will do NCERT Class 2 Unit 4 Store in the Garden. We will do target learning outcomes, full scholastic exercise, exercise for revision with easy Hindi explanation. Let's start the lesson Storm in the Garden. First of all, we will do target learning outcomes. First is students will be able to know about animals like snail, ants, etc. They will know about storm, they will know about garden, about new words, about pronunciation of new words. Let's see summary in English. This story is about a little snail. सुनु 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 नाम के एक छोटे से स्नेल घोंगे के बारे में ये कहानी है. He was playing with the ants in the garden. वह गार्डन में एंट्स के साथ खेल रहा था. Suddenly there was a loud sound of lightning. तभी वहाँ पर बिजली के चमकने की आवाज़ आती है. द एंट्स हिड देमसेल्व्स अंडर ए फ्लावर पॉट. जो चींटी होती हैं अपने आप को एक फ्लावर पॉट के नीचे छुपा लेती हैं. द स्नेल हिड इनसाइड हिज शेल. घोंगे की जो अपनी शेल होती है, क्वच होता है, वह खुद को उसके अंदर छिपा लेता है. सडनली देयर स्टार्टेड ए स्टॉर्म. तभी वहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है. द एंट्स आस्क सुनु सुनु टू गो बैक टू हिज मदर. जो एंट्स होती है, चींटी होती है, सुनु सुनु को उसकी मम्मी के पास वापस जाने के लिए कहती हैं. वाइल द स्टॉर्म वाज ब्लोइंग ऑन, सुनु सुनु केप्ट ऑन वॉकिंग एंड रीच टू हिज मदर. जब तूफान चल रहा होता है, हवा जोर से बह रही होती है, तो सुनु सुनु चलता रहता है और अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता है. ही टोल्ड हर अबाउट ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट ही गोट ऑन द वे. रास्ते में उसे जो जो अनुभव हुआ उसके बारे में वो अपनी मम्मी को बताता है. लेट्स बिल्ड ए वर्ल्ड लैडर. हम एक वर्ल्ड लैडर बनाते हैं. वर्ल्ड लैडर हमें किस तरह से बनानी है? हमें जो है इसका फर्स्ट वर्ड को रिप्लेस कर देना है. फर्स्ट वर्ड इज गिवन बाय द बुक itself, that is remove H, add P. What word is given? Now we have to remove H. We have to remove H. H को रिमूव कर देना है. P को हमें क्या कर देना है? यहाँ पर ऐड कर देना है. तो क्या बन जाएगा? पोट. POT, पोट. Next is remove P. P will be removed and C will be added, that is COT, coat. Now add A between O and T. A को हमें ऐड करना है किसके बीच में? O and T के. C O. Now we will add A. A को ऐड करेंगे A T. COAT, coat. Remove C, add B. C को हमें क्या कर देना है? रिमूव कर देना है. और B को ऐड कर देना है. तो क्या बन जाएगा? BOAT. Now remove B, add G. Now the new word is GOAT. Remove A. GOT. Now remove G, add H. HOT. New words are pot, coat, 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 BOAT, boat, GOAT, goat, GOT, goat, and HOT, hot. Next, answer these questions in yes or no. We have to answer it yes or no. Is this a coat? Is this a coat? Yes, it is. Is this a pot? No. It is not a pot. Not
a pot. Is this a cup? Yes, it is. Yes, it is. Is this pot white? No. Is there a black spot on hanky? Yes, it is. First, is this a coat? Yes, it is. Is this a pot? No. This is a bottle है ये. This is not a boat. Is this a cup? Yes, this is a cup. Is the pot white? क्या pot white है? No, this pot is not white. Is there a black spot on hanky? Yes, yes, it is. Now use polite words to complete the conversation. Polite words हमें use करने हैं. Words are given. May I enter the class? Sorry, I did it by mistake. Please give me a pencil. Thank you very much. First, the student is standing on the door. Then he will ask, may I enter the class? This is the first. Number 1, may I enter the class? Now, there are a girl and a boy. Girl is giving the pencil to boy. Okay? Please give me a pencil. Please give me a pencil. Next, sorry, I did it by mistake. The pen was broken by the boy. So, he said, sorry. I have done by mistake. Thank you very much. Okay, number 4, thank you very much. First boy is entering in the class. The boy is standing on the door. So, he may ask, may I enter the class? Second, please give me a pencil. Third, sorry, I did it by mistake. And fourth, thank you very much. Next is fill in the blanks with stable preposition given below. Prepositions are given in, under, near, above, behind. In, under, near, above, behind. The dog is dash the table. Dog, where is the dog? Dog is under the table. Under, un, under means नीचे. टेबल के नीचे है ना dog. The calf is dash the cow. The calf is dash the cow. क्या हो जाएगा? That is near. काव के पास है ना. काफ क्या होता है? बेबी ऑफ काउ. दैट इज काफ. काफ इज नियर द काउ. द फैन इज डैश द बॉय. द फैन इज अबव द बॉय. अबव ऊपर. फैन कहाँ है? ऊपर है. बॉय कहाँ है? नीचे फ्लोर पर स्टैंडिंग है. द सन इज डैश द क्लाउड्स. Where is the sun? This is the sun. These are the clouds. Where is the sun? Behind. The sun is behind the clouds. Behind. Okay. The spoon is dash the glass. The spoon is in the glass. स्पून कहाँ है? गिलास के अंदर है.
तो क्या हो जाएगा, इन, IN, इन। द स्पून इज इन द ग्लास। फर्स्ट, द डॉग इज अंडर द टेबल। डॉग कहाँ है, टेबल के नीचे है, टेबल ऊपर है, डॉग नीचे है, तो डॉग के लिए क्या आ जाएगा, अंडर द टेबल। द काफ इज डैश द काओ। काफ यानी गाय का बच्चा। गाय का बच्चा गाय के साथ साथ चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, नियर। नेक्स्ट इज द फैन इज अबव द बॉय। फैन कहाँ है, बॉय नीचे है, फैन अबव है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अबव, ऊपर है। द सन इज डैश द क्लाउड्स। सन जो है पीछे है, क्लाउड्स आगे है, तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड। द स्पून इज डैश द ग्लास। स्पून ग्लास के अंदर है, देन इट इज कॉल्ड इन, IN, इन। नेक्स्ट इज मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग। वर्ड्स को मैच करना है हमें उनके मीनिंग से। एयर, एयर क्या होती है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड अस दैट वी ब्रीथ इन। दिस इज वन, ओके। सेकेंड, विंड, दिस इज सेकेंड। विंड, हवा, जोरदार हवा, ए फास्ट मूविंग एयर, ठीक है। थंडर, नंबर 3। थंडर, ए बैड weather with thunder, strong wind and lightning. A bad weather with thunder, strong wind and lightning. Okay. 2, 3, 4. First is number 1, wind. Number 2, thunder. Number 3, storm. Number 4. ओके। एयर गैसेस का मिक्सचर होता है जिसमें हम सांस लेते हैं। विंड जो है तेज चलने वाली हवा होती है। थंडर, ए लाउड नॉइस दैट यू हियर आफ्टर लाइटनिंग। लाइटनिंग के बाद जो आप आवाज़ सुनते हो उसे थंडर बोलते हैं। स्टॉर्म, ए बैड वेदर विथ थंडर, स्ट्रॉन्ग विंड एंड लाइटनिंग, जिसमें तेज हवा भी चल रही है, बिजली भी चमक रही है और तूफान भी आ रहा है, मौसम भी ख़राब है, उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। नेक्स्ट इज नो अबाउट ए स्नेल एंड कलर द पिक्चर। स्नेल इज ए स्मॉल सॉफ्ट क्रिएचर। स्नेल क्या होता है, एक छोटा सा नरम सा जीव होता है विद हार्ड राउंड शेल। दिस इज हार्ड राउंड शेल and this is the soft creature. It carries its shell wherever it goes. जहाँ पर भी ये जाता है वहीं पर अपनी शेल को लेकर जाता है। Hide itself in the shell, अपने आप को शेल के अंदर छुपा लेता है। Snail moves slowly, बहुत धीरे धीरे चलता है। And often eats garden plants, क्या खाता है ये, गार्डन के प्लांट्स को खाता है। It has 2 feelers, these are 2 feelers, ये 2 feeler है इसके, first, second, विच हेल्प इन फीलिंग एंड टचिंग द थिंग्स, जो उसको सहायता करते हैं चीज़ों को टच करने में और फील करने में, महसूस करने में और छूने में। इसको आपको डिफरेंट कलर से कलर करना है। जिस भी कलर से आप कलर करना चाहते हैं उस कलर से आप इसको कलर कर सकते हैं एज यू विश। जैसे अगर आप करना चाहो इस तरह से, जो भी कलर आपको अच्छा लगे, ऐसी कोई चॉइस नहीं है। ये हमने इसके स्पॉटीज जो है उनको रेड कर दिया। नेक्स्ट कलर यू कैन डू एज यू विश, यू कैन टेक ग्रीन, रेड एंड ग्रीन मिलकर क्या हो गया है, दैट बिकम्स ब्लैक। ब्राउन ब्लैक कलर शो होता है ये।
बेसिकली ब्राउन कलर होता है। फेस, you can make face orange. Orange is not looking good. We will take blue color. Okay, we can make feelers. Feelers का कलर आप दे सकते हो. Let's make feelers also blue. You can color it as you wish. Let's complete the story of a drop of rain. Use words given in the help box. Help box में हमें कुछ words दे रखे हैं, उनको यूज़ करके हमें जो है ये वाटर साइकिल जो है वो कंप्लीट करना है. वर्ड्स आर गिवन: वाटर, रे, सन, लैंड, ड्रॉप्स, क्लाउड्स. ओके, वाटर, सन, लैंड्स, ड्रॉप, क्लाउड्स. ठीक है. फर्स्ट वी विल सी द वाटर साइकिल. दिस इज़ द सन. सन जो है तेज़ी से शाइन कर रहा है. इट शाइन्स फास्टली. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. दीज आर क्लाउड्स. बादल है ये. दिस इज़ द रेन. रेन जो है पानी की बूंदें जो हैं वो धरती पर आ रही हैं. ठीक है. ये नीचे क्या है? ओशियन है. ओशियन के अंदर पानी क्या हो रहा है? कलेक्ट हो रहा है. रेन वाटर इज कलेक्टिंग इन द ओशियन. नाउ सन इज शाइनिंग. सन इज शाइनिंग. नंबर 3, द वाटर इज इवेपोरेटेड. पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है. भाप बन के दोबारा से कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है. फिर से ये रेन्स में इकट्ठा होता है और रेन से फिर से क्या होती है? बारिश शुरू हो जाती है. द डैश साइंस. सबसे पहले क्या शाइन होता है? क्या चमकता है? सन. नंबर 1, सन. द सन शाइन्स ऑन द वाटर ऑन द लैंड. द डैश ड्राइज. क्या ड्राई होता है? वाटर. WATER. Water dries and goes into the sky. In the sky it forms dash. It स्काई में जाके ये क्या बन जाता है? क्लाउड्स. CLOUDS. The clouds have many dash of drops of rain like me. They fall on the land. फिर से वो किस पे गिर जाती है? धरती पर. तो कैसे इन्होंने सन से स्टार्ट किया है? पहले सूरज चमका. सूरज चमका तो क्या हुआ? धरती पर जो पानी था, ओशन के अंदर जो पानी था वो इवेपोरेट हुआ और वाटर की बूंदें क्या हो गई? सूख करके दोबारा स्काई में चली गई. आप जब घर पे देखते हो ना, मम्मी जब कोई पानी उबालती है चाय के लिए या किसी और काम के लिए, तो उससे ऊपर आपने भाप उड़ती हुई देखी होगी. दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. पानी स्टीम बन के ऊपर आकाश की तरफ चला जाता है. पानी आपने देखा होगा पतीले में कम रह जाता है. ठीक है, वो इवेपोरेट होता है. जब स्काई में जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं. क्लाउड्स के अंदर पानी की बूंदें इकट्ठा होती है. रेन ड्रॉप्स आर कलेक्टेड इन द क्लाउड्स एंड दे फॉल ऑन द लैंड और ग्राउंड इन द शेप ऑफ रेन. वो किस पर गिरती है? धरती पर गिरती है. किस शेप में? रेन की शेप में गिरती हैं. तो पानी से शुरू होके पानी पर ही ये ख़त्म हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. What is this called? This is called water
cycle. This is called water cycle. Now word meaning: visiting, going to meet someone, मिलने जा रहा था. Climb, moved up, ऊपर चढ़ गए. Snail, घोंगा. Store, तूफान. Hurry, स्पीड से भागना. Suddenly, अचानक से. Pulled, अंदर कर लिया. Flew, उड़ गए. Hiding, छिपना. Feelers, जो स्पर्शक होते हैं जिनसे वो टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं. These are called feelers. Next, evaluation. Draw a picture of water cycle. Draw a picture of flower pot. Write any 5 prepositions. If you like this video, you can like, share and subscribe Shrija Educators. Thank you very much. Bye bye. Have a nice day.